Hello everyone. Now we are going to start the main topic of this chapter, cells, types of cells, and we are going to study the cells in detail, various parts of various cells, prokaryotic cell and eukaryotic cells. So first of all, there are two types of cells. There are two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. The two types of cells are prokaryotic cell and eukaryotic cells. These are the two basic types of cells. इन सेल्स के दो टाइप करने का कारण क्या है? देखो इसका नाम कैसे पड़े आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द नेम. प्रो मींस सिंपल और एकदम प्रिमिटिव, एकदम सिंपल टाइप का. एंड कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस. कैरी ऑन रेफर्स टू न्यूक्लियस. सिमिलरली यू मतलब ट्रू और कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस means the cells that have very simple type of nucleus. We cannot call it as nucleus. It is very simple. It just has genetic material and that cell is called prokaryotic cell. Simple nucleus वाले cells, that nucleus is actually not a true nucleus. कैसे रहता, क्या रहता, we will see in the structure of prokaryotic cell. But अगर तुमको वर्डली याद रखना है तो वर्ड को ब्रेक करो. ब्रेक दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स. प्रो मीन्स सिंपल और प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. हमेशा के लिए याद रखो ये वर्ड्स. ग्रीक लैटिन वर्ड्स कैसे, ग्रीक वर्ड था कैरी ऑन, उस पे से कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस ऐसा निकाले आना है. इधर भी यू मतलब ट्रू, जहां कहीं पे भी यू वर्ड आएगा उसका मतलब रहेगा ट्रू. जैसे कि यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, यू कैरी ऑन. ओके, सो इस तरीके से यू वर्ड आया कि उसका मतलब लेने का ट्रू. कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस. Okay, so thus the cells having simple nucleus are prokaryotic cells, and the cells that are having a well developed true nucleus, complex nucleus that has a structure, a specific structure of nucleus is known as eukaryotic cell. ठीक है, जैसे कि इसमें आएंगे तुम्हारे पूरे मोनेरन्स, किंगडम मोनेरा, मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा. अब ये मोनेरा किंगडम क्या है अपन देखेंगे बाद में. But kingdom Monera के all members of Monera, they are collectively called monerans. They are called monerans. So that monerans are prokaryotes. And other four kingdoms, Protista, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae or Animalia. These are the four kingdoms that are eukaryotic kingdoms. Protista, फंजाई. प्रोटिस्टा में तुम्हारे अमीबा वगैरह आ जाएंगे. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया तुम्हारे इधर आ जाएंगे. प्रोटिस्टा में अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा. फंजाई में सारे फंगस आ जाएंगे तुम्हारे. ओके, जितने भी फंगस है, म्यूकर वगैरह, राइजोपस वगैरह, मशरूम्स, दे आर हियर. प्लांट्स, सारे प्लांट्स प्लांट किंगडम में. और एनिमलिया में ऑल दी एनिमल्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन एनिमल. सो वी आर यूकैरियोट्स. Okay, and bacteria, eubacteria, archbacteria, they are prokaryotes. तो अकेला किंगडम है ये. The only prokaryotic kingdom is Monera. Other four kingdoms are eukaryotic kingdoms. So therefore, out of the five kingdoms, this is called five kingdom system. ये जो five kingdom है, it was proposed by R.H. Whittaker. Okay, we will see it in biological classification. These five kingdoms, the first kingdom is Monera. It is most simple type of kingdom containing all prokaryotes. एंड रिमेनिंग फोर किंगडम्स दे आर यूकैरियोट्स. क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है. ओके, बिसाइड दिस देयर आर मेजर डिफरेंसेस, सो मच डिफरेंसेस. हम लोग क्या करेंगे, प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट एट द एंड स्टडी करेंगे. जब बीच बीच में मैं तुमको बताते जाऊंगा कुछ चीजें प्लस. तो हम उससे क्या होगा, पहले ये स्टडी कर लेंगे पूरा डिटेल में प्रोकैरियोट, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल स्टडी कर लेंगे. और फिर दोनों में जो, जब तुमको दोनों के स्ट्रक्चर पता रहेंगे, देन यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन दी two. Okay, so let's start with the structure of a prokaryotic cell first of all. नाम कैसे पढ़ा आपको ध्यान में आ गया? Yes, now we will see the structure of a prokaryotic cell. Structure of a prokaryotic cell, or we are simply studying the structure of a simple bacteria or a bacterial cell. अगर आपने एक बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया आर माइन्यूट, दे हैव वेरी स्मॉल साइजेस, 3 to 5 माइक्रोमीटर्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेरियस सेल शेप्स एंड साइजेस.
In that lecture we have seen bacteria, they have a size of about 3 to 5 micrometer, 3 to 10 micrometer, उससे बड़े नहीं होते bacteria. Okay, Dilister bacteria was the smallest one, right? So that bacteria, they are so small that they cannot be easily visualized with naked eyes. We need to stain that bacterial cell, and for that staining we will use gram staining. So that bacteria will either appear blue if it is gram positive, or it will appear pink if it is grams negative. We have seen the technique of staining the bacteria. So imagine that you have stained a bacterial slide, you have prepared a slide, and you can see both the bacteria on the same slide. Okay, it is possible to visualize both the bacteria. And now you have two bacterial cells, blue colored gram positive and pink colored gram negative bacteria. Now of that bacteria we will see, for example, उनको और डिटेल में देखना है अपने को अगर, तो अपने को अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसका स्टडी करना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दैट सो स्मॉल साइज वी नीड टू जूम दैट बैक्टीरिया टू मच एक्सटेंट, और ज्यादा उसको जूम करके देखना पड़ेगा. देन वी कैन सी दी स्ट्रक्चर ऑफ दैट बैक्टीरियल सेल. अब हर सेल में कुछ जनरल फीचर्स हमने देखे थे. एवरी सेल इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय सर्टन मेम्ब्रेन that is known as plasma membrane, which encloses cytoplasm, nucleus. Cell organelles may be present, absent, whatever be the type of cell, and some other features, some other extra structures can also be seen on that cell, right? तो हम बैक्टीरिया में क्या क्या देखेंगे. हम बैक्टीरिया मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ये जो डायग्राम दिख रही है तुमको, मैं तुमको ये डायग्राम एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ. ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या है नोट करके रखो. नीट में एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता, ये जो मैं पूरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर हर साल नीट में एक क्वेश्चन हमेशा आता है. एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल. तो इसके लिए आपको ये पार्ट अच्छे से करना है. एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क ऐसे फिक्स मिल सकते. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल. ओके, नाउ यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल. Pro means simple and carrion means nucleus. Means there is a simple or a most primitive type of nucleus present. We cannot call it as a nucleus because it is not actually a nucleus. It is just DNA. So that nucleus is known as nucleoid. The nucleus of bacteria is known as nucleoid. We have divided the cells in two types on the basis of nucleus. यूकैरियोट प्रोकैरियोट. न्यूक्लियस के हिसाब से अपने डिवाइड करना. ट्रू न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट, और अपना एक सिंपल सा न्यूक्लियस है तो वो प्रोकैरियोट. मींस यू हैव डिवाइडेड द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. ऑन द बेसिस ऑफ विच सेल ऑर्गेनेल वी आर डिवाइडिंग द सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस बहुत सिंपल टाइप का है. सो वी आर कॉलिंग इट एज न्यूक्लियोइड. वी आर कॉलिंग इट एज न्यूक्लियोइड, ऑल्सो नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ऑल्सो नोन एज incipient nucleus or genophore क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल रखा है. ओके, व्हाट इज दैट जेनेटिक मटेरियल, वी विल सी इट लेटर. तो इस तरीके से सिंपल नाम क्यों पड़ा प्रोकैरियोटिक सेल का समझ में. प्रोकैरियोट्स इंक्लूड ऑल मोनेरन्स, ऑल बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. इसके अंदर आने वाले कौन कौन है. प्रोकैरियोट्स मतलब कौन कौन आते तुम्हारे, ऑल मोनेरन्स सच एज, कौन कौन आएंगे इसमें, योर ओरिजिनल एक्चुअल बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, okay. Then you can also add other monerans, Rickettsia, PPLO वगैरह ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, और माइकोप्लाज्मास दे आर आल्सो इंक्लूडेड हियर. ओके, PPLO माइकोप्लाज्मा भी इसमें डाल दो. सो दीज आर द मेन और मेंबर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, PPLO, माइकोप्लाज्मास, योर स्पाइरोकेट्स, Rickettsia, actinomycetes. So these are certain members of this class. ओके, यू बैक्टीरिया में फिर तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएंगे. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पे डाल दो. ठीक है, स्पाइरोकेट्स, Rickettsia, okay. Then actinomycetes,
आपको एमसीक्यू में पूछेंगे इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है या इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट है, which of the following is a prokaryote। तो इसके लिए आपको ये मेन एग्जांपल्स पता होने चाहिए। ओके, सो दीज आर द मेंबर्स, पीपीएलओ लास्ट में ऐड कर लो, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरो pneumonia like organisms, they lack cell wall, they can live with or without oxygen, they are much smaller than bacteria, about 10 times smaller than bacteria, right? They lack cell wall, so we are seeing them, they are the smallest living creature, smallest living cell, okay, mycoplasma or ppl, thus these are the examples of your protist। ओके, नाउ अगर इसके बाद और बात करूं मैं तो शेप्स और साइजेस की बात कर लूं तो बैक्टीरिया के शेप्स हमने देखे थे, 4 शेप्स थे। फिर सीधी डायग्राम, बैसिलस, these are rod shaped bacteria, coccus, these are these round or circular bacteria, okay, coccus, then your next one is vibrios, they are comma shaped bacteria, okay, and lastly spirillum, they are spiral shaped or twisted cells, okay, बाकी की भी cells हो सकते हैं। So these are major 4 types of bacterial cells according to their shape. Rod shaped means their body is like a rod, okay, round bacteria तो ऐसा गोल रहेंगे सिर्फ cell। Vibrios, they may be comma shaped, exactly comma जैसे imagine करो थोड़ा सा, तो जिससे उनको फिर एक फ्लैजेला लगा दो, वो मूवमेंट करते फिर उसकी मदद से। एंड स्पाइरिलम, they are like this, shape like this, so they are this। अब कोकस में भी क्या हो सकता है, 2 कोकस बैक्टीरिया एक साथ रह सकते कभी कभी, तो दे आर कॉल्ड डिप्लोकोकस। 2 कोकस एक साथ है तो डिप्लो, डिप्लो मतलब 2, 4 रहे तो टेट्रा, टेट्राकोकस, ओके। कभी कभी क्या होती है, कोकस की चेन बन जाती, ओके, इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टो, स्ट्रिप, देखो वर्ड पे से कैसा याद रखने का, स्ट्रेप्टोस मतलब चेन, चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोबैसिलस क्या रहेगा, चेन ऑफ बैसिलस, ये एक बैसिलस, ये दूसरा बैसिलस, ये तीसरा रॉड शेप, ये चौथा रॉड शेप, तो ये चेन बन गई उनकी। तो लाइक दिस वी कैन हैव चेन ऑफ दैट बैसिलस, चेन ऑफ कोकस। चेन वर्ड के लिए स्ट्रेप्टो, डिप्लो मतलब 2, दिस इज द चेन। और अगर उनका क्लस्टर बन गया तो उसके लिए स्टफाइलो, जस्ट लाइक ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर के जैसा, जैसे कि ये देखो, अगर इनका ऐसा क्लस्टर तैयार हो गया, चेन वगैरह नहीं है, मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, तो अंगूर जैसे ग्रेप्स में कैसा क्लस्टर रहता है ग्रेप्स का, जस्ट लाइक दैट इफ द कॉलोनी मल्टीपल कोकाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट हियर, सो इट फॉर्म्स स्टाफाइलोकोकस, स्टाफाइलोबैसिलस। स्ट्रेप्टो मतलब चेन, स्टाफाइलो मतलब क्लस्टर और डिप्लो मतलब 2, टेट्रा मतलब 4, ओके। इस तरीके से इनके सब टाइप्स रह सकते हैं, शेप्स रह सकते हैं, बट बेसिक 4 शेप्स है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? वी आर स्टडीइंग द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैसिलस के बहुत सारे एग्जांपल्स है, बैसिलस thuringiensis, अलग अलग बैसिलस जो तुमको अलग अलग बीमारियां करते, बैसिलस एंथ्रेक्सिस जो अपने को एंथ्रेक्स भी करता, कोकस के भी स्टाफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये अपने को निमोनिया करते, विब्रियो कॉलरी, इट कॉजेस कॉलरा, ओके। स्पाइरिलम के भी अलग अलग प्रकार है, बहुत सारे है, they also cause certain diseases, sexually transmitted diseases etc, okay। according to shapes these are the types of bacteria। shape होने के बाद साइज भी तुमको पता है। now we are going to study the structure, actual structure of this bacterial cell। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें तुमको क्या क्या पार्ट्स दिखाई देंगे, so that parts of a bacteria in this structure, ये डायग्राम हमेशा यहीं पे रहेंगे आपको छोटी सी, उस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा। सी हम क्या करने वाले हैं, बैक्टीरिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है, सो दैट स्ट्रक्चर विल बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेडिंग। सबसे पहले तो आउटर कवरिंग रहेंगी सेल एनवलप, आउटर कवरिंग स्टडी करेंगे सेल एनवलप। फिर उसके बाद उसके अंदर का जो मटेरियल है, दैट मटेरियल इनर मटेरियल इट इज साइटोप्लाज्म। उसके बाद उसका न्यूक्लियस के बदले न्यूक्लियोइड, और उसके बाद उसके अंदर जो कुछ भी एक्स्ट्रा के मटेरियल है न्यूक्लियोइड के बाद, साइटोप्लाज्म में अपन राइबोसोम्स, ओके। और इसके अंदर देखेंगे अपन प्लाज्मिड एज अ लास्ट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5th वन।
plasmid as a last structure. So we will study the bacterial cell under this 5 head. देखो कोई भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने का पैटर्न रहता है, कोई भी स्ट्रक्चर को तुमको क्या करने का, स्ट्रक्चर तुमको बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने का, तो तुम क्या करने का, बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के किस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ आने का, एक एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते करते, या अंदर से बाहर की तरफ जाने का। याद रखो थोड़ा सा, अभी से ये ध्यान में रखोगे तो तुमको पॉइंट्स भी भूलते नहीं, अपन अपने को एक टेक्निक याद बन जाती कि कोई भी चीज को अपन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ। ऐसा बीच का बोल रहे हैं फिर अंदर का बोल रहे हैं फिर अचानक से बाहर का याद आ रहा, ऐसा मत करो। अपन उनको इस तरीके से बोलेंगे आउटर टू इनर जाएंगे, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो रहेगी सेल एनवलप रहेगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। प्लाज्मिड सेल साइटोप्लाज्म में रहेगा, न्यूक्लियस ये भी साइटोप्लाज्म में रहेगा, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और राइबोसोम्स भी रहेंगे। और इसके अलावा सम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर के स्ट्रक्चर्स, दे आर योर फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्री एंड फ्लैजेला, ये 3 स्ट्रक्चर, फिम्ब्री, पिलाई एंड फ्लैजेला, these are outer structure, they are present outside the cell। ये वैसे सब में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये थोड़े से कॉमन किसी में है किसी में नहीं है, इसके लिए अपन इनको एक्स्ट्रा के स्ट्रक्चर्स देखेंगे एट द एंड, बट ये सब में रहेंगे, ये कॉमन स्ट्रक्चर्स है, और these are कॉमन स्ट्रक्चर्स। ये 5 स्ट्रक्चर्स अपन पहले देखते हैं और ये लास्ट में स्टडी करें, ओके। वो स्ट्रक्चर में देखो डायग्राम में भी तुम दिख रहे हैं, तुमको कुछ चीजें इनमें से देखो, ढूंढने की कोशिश करो, तुमको ये जो नाम लिखे हुए मिल रहा है क्या। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। Now first of all let's start with the cell envelope. Let's start with the cell envelope. What is cell envelope? What do you mean by envelope? Envelope is the outer covering or the coat, outer coat को envelope word use करते हैं अपन। So it is made up of 3 layers. It is made up of 3 layers. देखो बैक्टीरिया की सेल में कैसा रहता हूँ, मैं ड्रॉ भी कर रहा हूँ, वैसे तो दिया हुआ है, बट देखो कैसे रहती है। This is the outermost layer. It is called glycocalyx. Second is cell wall, and third layer is plasma membrane. Third layer is plasma membrane. So there are 3 layers: glycocalyx, cell wall. I am drawing cell wall like this. This is cell wall, blue colored. ठीक बताने के लिए मैं इसको डबल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में भी ड्रॉ करो। ये डायग्राम आपको 5 बार ड्रॉ करनी है, एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको आनी चाहिए। क्लास की, कॉलेज की भी जो एग्जाम्स होंगे आपकी, उसमें आपको ये डायग्राम डिटेल में आता, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके आने चाहिए। आउटर मोस्ट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, मैं शॉर्टकट में लिख रहा, लेकिन आपको शॉर्टकट में नहीं लिखने का, GC। दिस इज योर सेल वॉल एंड इनर मोस्ट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो मैं उसको और थीन ऐसा बता रहा हूँ, this is your PM, Prime Minister, it's plasma membrane, glycocalyx, cell wall, plasma membrane. So these 3 they are collectively called, they collectively form your cell envelope, they collectively form your cell envelope, okay. It encloses a chamber, a cavity, a space, and that space is filled up with the material known as cytoplasm. Glycocalyx, cell wall and plasma membrane, these are the 3 layers and they are collectively called as cell envelope. अब इसमें एक एक स्ट्रक्चर अपन डिटेल में देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स पहले देखते हैं, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में जो 4-5 पॉइंट्स है मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में नोट कर लो या फिर बुक में नोट कर लो। ग्लाइकोकैलिक्स, सी हियर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। उसका कंपोजिशन मतलब वो किस चीज से बने वाला है, इट इज मेड अप ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स, इट इज मेड अप ऑफ शुगर्स एंड प्रोटीन्स। विच शुगर्स? शुगर्स आर नथिंग बट योर पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ओके। शुगर्स और प्रोटीन से बना है। देखो हर लेयर में कोई ना कोई केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो ग्लाइकोकैलिक्स में कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, 3 चीजों से बना है, शुगर्स है उसमें मेजर और प्रोटीन्स। पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट एंड पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स मतलब पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट, ओके। देन दिस लेयर may be present in the form of a loose sheath or a tough covering,
Glycocalyx is present in the form of a loose sheath or a tough covering. So अगर कभी कभी हो सकता है एकदम पतली सी पन्नी जैसा, एकदम पपड़ी जैसा रहेगा, लूज एकदम, इट कैन बी इजीली रिमूव्ड, तो ऐसे लूज कवरिंग के जैसा रह सकता, इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। जब वो ऐसा पतला सा रहेगा तो उसको बोलने का स्लाइम लेयर। बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ थिक लेयर, शुगर्स का डिपोजिशन, प्रोटीन्स का डिपोजिशन ज्यादा होगा रहेगा, तो कड़क हो जाएगी कोट, एकदम टफ हो जाएगी, इट विल बी प्रोटेक्टिव एंड दैट कवरिंग इज नोन एज कैप्सूल। दैट टफ कोट इज नोन एज कैप्सूल। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स जरूरी नहीं कि पतला रहेगा, कभी कभी बहुत मजबूत भी रह सकता है। जो बैक्टीरिया में कैप्सूल रहेगा वो बैक्टीरिया को बोलेंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वो ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, उनको अपने सेल्स मार नहीं पाएंगे, अपने डब्ल्यूबीसी उनको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी टफ कोट रहेगी, कवरिंग बहुत मजबूत रहेंगी उनकी, तो उनको किल करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। जिनका स्लाइम लेयर रहेगा उनका स्लाइम लेयर इजीली रिमूव करना आता, वो बैक्टीरिया अपने को मार नहीं सकते, बीमार नहीं कर सकते, अपन उनको जल्दी मार सकते, बिकॉज दे हैव लूज शीट। ओके, देन द फंक्शंस ऑफ योर ग्लाइकोकैलिक्स, इसके दो फंक्शंस है। इट हेल्प्स इन एडहेजन ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज स्टिकिंग ऑफ बैक्टीरिया टू द सरफेस। बैक्टीरिया कहीं तो भी फूड वगैरह पे बैठेगा, उसको खाने के लिए, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए, तो उसको स्टिक करने की मदद करेगा। दिस ग्लाइकोकैलिक्स विल हेल्प इन एडहेजन, क्योंकि वो शुगर ही है ना, शुगर रहने से क्या होती है, चीज स्टिकी हो जाएगी, तो वो चिटक जाएगा बैक्टीरिया और फिर उसको आराम से बैठ के न्यूट्रिशन लेगा। दूसरा, द कैप्सूल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डब्ल्यूबीसीज। अभी बोला मैं तुमको डब्ल्यूबीसीज से प्रोटेक्शन फ्रॉम डब्ल्यूबीसीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम WBCs is also due to glycocalyx। अगर वो कैप्सूल रहा तो फिर मुश्किल जाएगा उस बैक्टीरिया को मारने में। तो इस तरीके से these are the points about glycocalyx। outermost layer made of sugars and proteins, may be in the form of loose layer known as slime layer or a tough coat known as capsule, and provides helps in adhesion and it helps in protection from WBC। अब ये जो लाइन से लूज शीट और टफ कवरिंग, दिस वाज आस्क्ड इन नीट। Which of the following layer is present in the form of a loose sheet or a tough covering? So which layer is that? It's your glycocalyx। Clear? Okay, अपन ने पहले स्ट्रक्चर स्टडी कर ली। Now see next one, ये सब MCQs है, one liners। इसका MCQ आपको पूछ सकते हैं। It is made up of dash dash, sugars and proteins, polysaccharides and proteins। Which is the outermost covering in bacteria in the cell envelope? Glycocalyx। Okay, now next one is your, after glycocalyx next layer is your cell wall। हर चीज नोट करके रख लो, तुम्हारे लैंग्वेज में मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी अपने इसमें लिख कर रख लो। नाउ सेल वॉल, इट इज द मिडल लेयर बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में फंसा लिया। ओके, इट इज मेड अप ऑफ टू केमिकल्स, पेप्टिडोग्लाइकेंस or murin, also known as murin, M-U-R-E-I-N, and pseudopeptidoglycans। Peptidoglycans also known as murin and pseudopeptidoglycans। Peptidoglycans are present in eubacteria and pseudopeptidoglycans are present in archaebacteria। आर्च बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहेगी, इट इज मेड ऑफ pseudopeptidoglycan एंड बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। देखो नाम कैसा, पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, पेप्टाइड्स, ग्लाइको मतलब शुगर, मतलब ये भी शुगर और प्रोटीन से बने हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन्स ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा अलग रहेगा, रिजिड रहेगा, मजबूत रहेगी ये सेल वॉल थोड़ी ज्यादा, ये स्टिकी नहीं रहेगी। ओके, सिमिलरली सूडोपेप्टिडोग्लाइकेंस दिखते तो प्रोटीन शुगर जैसे, लेकिन कुछ अलग केमिकल्स रहते, जिसकी वजह से उसका नाम क्या रखे, सूडो, फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकेंस। ओके, अब इसमें बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया में से अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं, बिकॉज आर्क बैक्टीरिया आर एक्चुअली एंशिएंट बैक्टीरिया, ओल्ड बैक्टीरिया बहुत। जब अर्थ बनी थी, लाइफ शुरू हुई थी अर्थ पे, जब एकदम हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर था, वोल्केनिक इरप्शंस होते थे, गैसियस, बहुत सारे गैसेस रिलीज होते रहते थे, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, टॉक्सिक गैसेस। उन गैसेस वगैरह में, उस हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में ये बैक्टीरिया तैयार हुए थे। तो इनका सेल वॉल बहुत ही अलग स्ट्रक्चर था, इसका बहुत अलग रिजिड ऐसा स्ट्रक्चर था, और उसमें जो केमिकल थे उनको सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन नाम है। आज की जो बैक्टीरिया है, जो पिछले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो बने वाले, कुछ हजारों साल, लाखों साल पहले, इन बैक्टीरिया में इतने खतरनाक केमिकल्स नहीं,
ये बैक्टीरिया एकदम हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, हाई गैसियस कंडीशन, सॉल्ट कंडीशंस को भी टॉलरेट कर सकते हैं आर्क बैक्टीरिया। अपने जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में रहेंगे, हवा पानी में रहेंगे, उबालने के बाद मर जाएंगे, तो इसके वजह से इनके जो फ्रूट सेल वॉल अलग है, इनके सेल वॉल बहुत अलग है। ओके, प्लस ग्राम बैक्टीरिया में भी दो प्रकार के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, उनके सेल वॉल में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। दैट डिफरेंसेस विल बी डेल्ट सेपरेटली, हम उनको बाद में देखने आए। ओके, तो दिस इज अबाउट सेल वॉल। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन समझ में आया सेल वॉल का। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन एंड स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकैन इन बैक्टीरिया एंड इन आर्क बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। ओके, सेल वॉल के फंक्शंस लिखो डायरेक्टली, इसके अलावा इसका और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है। सो देयर आर फंक्शंस, इट प्रोवाइड्स शेप, support and rigidity, shape, support and rigidity plus protection to the bacteria। मेन फंक्शन है सेल वॉल का, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन। एक बार का ग्लाइकोकैलिक्स टूट जाएगा, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स टूटने के बाद सेल वॉल जो रहेंगी वो ज्यादा मजबूत रहेंगी एज कम्पेयर टू ग्लाइकोकैलिक्स, उससे उसको भी तोड़ना पड़ेगा तो बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स टूट गया तो बैक्टीरिया मर गया ऐसा नहीं, सेल वॉल उसको प्रोवाइड करती है एक्चुअल प्रोटेक्शन, वो ज्यादा टफ है। इट विल मेंटेन शेप, वो ना श्रिंक होती ना स्वेल होती, तो उसके से शेप फिक्स रहता बैक्टीरिया का। प्लस इट प्रोवाइड सपोर्ट, बैक्टीरिया की जो सेल रहेंगी उसको सपोर्ट मिलेगा, कहीं गिरेगा पड़ेगा तो। प्लस रिजिड रहेंगी, मतलब बहुत इलास्टिक नहीं रहेंगी, स्ट्रेच नहीं हो सकती, वो रिजिड रहेंगी, वही की वही फिक्स रहेंगी। सो इट विल मेंटेन द शेप, it will provide mechanical support, it will provide rigidity and it will provide protection to the bacteria. Okay, so these are the points about your cell wall. Lastly, the points about your plasma membrane. मैं जो बोल रहा हूँ सब नोट करके रखो, इसी तरीके से आसान है, याद हो जाने चाहिए यहीं के यहीं पे। ये सब बातें आपको एमसीक्यू में मिलेंगी, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। Lastly, your plasma membrane. Plasma membrane as the it is the third layer or the innermost layer। किसकी बात चल रही है अपनी? We are talking about plasma membrane. It is the innermost layer. It is in direct contact with cytoplasm. It is in direct contact with cytoplasm। है क्या? देखो cytoplasm के direct contact में is in direct contact with cytoplasm. Then it is made up of lipoproteins. It is made up of lipoproteins and it is made up of lipoproteins, that is it is made up of lipids। lipo मतलब lipids और proteins, lipolipids proteins। ग्लाइकोकैलिक्स में शुगर प्रोटीन है, सेल वॉल में प्रोटीन शुगर है, और इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन सब तरफ है, बाहर दो जगह पे शुगर से, लेकिन अंदर लिपिड है। लिपिड रहने से क्या होगा, पानी वहां पे फिर रुकेगा नहीं, हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर अंदर बाहर नहीं आ पाएगा, पानी को अंदर रोक के रखेगा, बाहर के पानी को अंदर आने देंगे। देन इट विल बिकम सेमी परमिएबल, इट विल बिकम सेमी परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। प्लस इट विल हैव सर्टेन प्रोटीन्स दैट विल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अपन कैसा होता है एक्सचेंज बाद में देखने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। सो दैट सेमी परमिएबल, बिकॉज इट विल, सेमी मतलब आधा, हाफ, एंड परमिएबल मतलब परमिशन, इट विल अलाउ ओनली सर्टेन थिंग्स टू कम इन एंड गो आउट। सॉल्वेंट को अंदर बाहर आने जाने देना, ओके। इट विल अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू एंटर और गो आउट, किसी वाटर लिक्विड वगैरह कुछ अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा, दैट टू ओनली सेलेक्टेड लिक्विड, ओके। देन चालू है। Plasma membrane is made up of lipoproteins, that is lipids and proteins. Along with lipids, there are certain branched sterols called hapenoids. These are also now discovered recently. कुछ ऐसे खास स्टेरॉल्स, अल्कोहल रहते हैं, तो they are also present here in this layer. These are branched sterols known as hapenoids. But what is but? Cholesterol is absent in the plasma membrane.
रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो, याद रख लो, जो भी करना है। कोलेस्टेरॉल इज एब्सेंट इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया में कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट नहीं रहता उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कोलेस्टेरॉल इज प्रेजेंट इन आवर यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस का पॉइंट है। कोलेस्टेरॉल नहीं रहेगा, यू हैव हर्ड अबाउट कोलेस्टेरॉल ऑयल्स में वगैरह में रहता, सो दैट कोलेस्टेरॉल इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉल। स्टेरॉल्स तो है, हैपेनॉइड्स है, बट कोलेस्टेरॉल नहीं है। Since cholesterol is absent, so plasma membrane becomes a rigid membrane. इलास्टिसिटी चले जाती और वो एक रिजिड मेम्ब्रेन बन जाता। जब कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसकी वजह से वो जो मेम्ब्रेन रहेगा थोड़ा सा अपन इलास्टिक हो जाएगा, उसको खींच सकते, तान सकते अपन उसको इस तरीके से। बट कोलेस्ट्रॉल अगर निकाल दिए तो ये जो ब्रांच्ड स्टेरॉइड्स रहेंगे, ब्रांचिंग वाले रहेंगे, उनकी वजह से उसको खींच नहीं सकते, वो जल्दी से तानेगा नहीं, जल्दी से खींचे नहीं जाएंगे, इलास्टिक नहीं रहेगा, यू कैन नॉट स्ट्रेच इट। ओके, सो दैट अनस्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज रिजिड मेम्ब्रेन। इफ यू कैन स्ट्रेच इट मींस इट इज इलास्टिक, बट इलास्टिक मेम्ब्रेन अपना रहेगा ड्यू टू कोलेस्टेरॉल। बैक्टीरिया में कोलेस्टेरॉल नहीं है तो उनका मेम्ब्रेन हो जाएगा रिजिड मेम्ब्रेन। याद रखो, एमसीक्यू में पूछते, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन बोथ मेम्ब्रेन्स, प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। नो, इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट ओनली इन आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, हेंस द मेम्ब्रेन इज रिजिड हियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये होगा उसका कंपोजिशन के बारे में। दिस इज अबाउट कंपोजिशन। देन इट इज अ selectively permeable membrane. It is a selectively permeable membrane. नाम से समझ में आ रहा, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड चीजों को ही, और परमिएबल मतलब परमिट करेगा। इट विल अलाउ सेलेक्टेड molecules to enter and to go out. It will allow selected molecules to enter and to go out. वाटर को चाहे जब जरूरत पड़ेगी तो ये अंदर आने देगा, एक्स्ट्रा होगा तो पानी बाहर फेंक देगा। So it will allow selected material to come in and to go out. Such membrane is known as selectively permeable membrane. कई प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं। इम्परमेबल मेम्ब्रेन मतलब किसको इसने आने देगा, इम्परमेबल नॉट परमिशन। परमेबल मेम्ब्रेन किसको भी आने जाने देगा। सेमी परमेबल सिर्फ लिक्विड को आने देगा। सेलेक्टिवली परमेबल सेलेक्टेड चीजों को ही आने देगा, लिक्विड्स को आने देता, आयंस को आने देता, जाने देता। तो ये कौन से टाइप का मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसके फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन, सो इट विल फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, बाहर सेल वॉल है, अगर बैक्टीरिया को कुछ नुकसान हो गया, मारवार लग गया, सेल वॉल टूट गई, तो यहाँ के शुगर प्रोटीन यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और फिर उसकी सेल वॉल रिपेयर हो जाएंगे, बैक्टीरिया ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। सो सेल वॉल बनाने का काम करेगा यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड, it will also provide material exchange of material. It will help in exchange of material with surrounding. जो ये हो रहा है अभी एक्सचेंज देखिए अपन, because it is semi permeable, so it will allow help in exchange of material between it will help in exchange of material with the surrounding. Thirdly, it will act as a barrier. It will act as a barrier between interior of cell, ये interior है, and the external environment. अगर बैक्टीरिया को यहाँ तक मार लग गया, यहाँ नुकसान होगा और उसका इतना टूट भी गया, तो आखिरी बैरियर बोल के कौन काम करने वाला तुम्हारा, लास्ट बैरियर बोल के एक रुकावट का काम कौन करने वाला, योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. It will separate the internal of cell from external environment. It will act as a barrier. Okay. Plus it will also act as a point of communication. Point of communication. अब communicate करना मतलब कॉल वॉल करना नहीं. It will help in exchange. ये communication है ना, एक प्रकार का इधर से उधर आदान प्रदान कर रहे, किसी चीज को एंटर एग्जिट करने में मदद करे. So it is helping in communication. It is the point of communication, area of communication. Okay, and lastly, function number 5, it forms special structures called mesosomes. It forms special structures called mesosomes, and that mesosomes are the site of respiration, photosynthesis, DNA replication, dot separation of DNA. बहुत सारे functions हैं. We will study that mesosomes in upcoming lecture.
बट इट विल फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स मेसोसोम्स। क्या रहते हैं मेसोसोम्स, थोड़ा सा देख लो। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा 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 वाला रहता है, या फिर कभी ऐसा लड्डू के जैसा बन जाता। फोल्डिंग दिख रही क्या उसकी, फोल्डिंग्स। तो ये जो फोल्डिंग है इसके अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो जाती है। जैसे कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता, तो वही रिएक्शंस यहाँ पे कैरी आउट होती इन दिस मेसोसोम्स। सो मेसोसोम्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स, दे आर दी इनवेजिनेशंस, इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ आए वाले फोल्डिंग्स, अंदर की तरफ फोल्डिंग आ रहे। एक रूम इमेजिन करो और रूम में जो पिलर वगैरह बाहर ऐसा अंदर की तरफ आला रहता, तो वो जो होगा वो मेसोसोम हो गया। मेसोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लेट्स और वेसिकल्स, लड्डू जैसे रहेंगे, ऐसे गोल फोल्ड हुए वाले, ओके, बलून जैसे। सो दे आर मेसोसोम्स। Mesosomes are most important structure here. They are formed from, they arise from plasma membrane. They arise from plasma membrane. MCQ में पूछ सकते, Mesosomes arise from glycocalyx, cell wall, plasma membrane, nuclear membrane. So they arise from plasma membrane. So these are the functions of your plasma membrane. Structure अच्छे से समझ में आया। अब तक का cell envelope is done here. We have done with cell envelope. ओके, एक बार रिवाइज कर लो। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोट करके रख लो। केमिकल्स वगैरह देख लो, कहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कौन किससे बना रहा है, कंपैरेटिवली स्टडी कर लो। तीनों के फंक्शंस देखो, पहला वाला एडेजन कर रहा, दूसरा प्रोटेक्शन दे रहा, तीसरा वाला इतने सारे फंक्शन एक्सचेंज वगैरह कर रहा, मेसोसोम्स तैयार हो रहे। सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट आर अबाउट योर सेल एनवेलप। वी विल स्टडी अबाउट साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, plasmids and the extracellular structures in our upcoming lectures. Thank you.